Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, glorious Lord. We bless you, praise you. Bless you, praise you, Lord. We bless you, we praise you. Hallelujah. 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 Bless you, praise you, bless you, praise you, Lord. Bless your holy name, bless your holy name. We bless your holy name, bless your holy name, bless your holy name. Lord Jesus, we bless your holy name. We bless your holy name, bless your holy name. Bless you, bless you, bless you, Jesus, bless you. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praises to the name of the Lord, praises to the name of the Lord, praises to the name of the Lord. Praises to the name of the King, praises to the name of the King, praises to the name of the King, praises to the name of the King. Lord, I plead your blood, Lord Jesus, I plead your blood, I plead your blood. I plead your blood, I plead your blood. Lord Jesus, I plead your blood, I plead your blood. I plead your blood over everyone, I plead your blood over everyone, I plead your blood over myself. I plead your blood over everyone that is listening and that will listen later on. Those who have joined and those who will join us later on, Father, I plead your blood. By faith I unleash the blood of the Lamb, 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 blood of the Lamb. Hallelujah. I unleash the blood, I unleash the blood, I unleash the blood. Lord, I release the blood, the precious blood, precious blood, precious blood, precious blood. I release the precious blood of Yahushua HaMashiach. Precious blood of Yahushua HaMashiach, precious blood of Yahushua HaMashiach. Precious blood of Yahushua HaMashiach, precious blood of Yahushua HaMashiach. Precious blood of Yahushua HaMashiach, precious blood of Yahushua HaMashiach. Precious blood of Yahusha, I plead your blood. Yahusha, I call upon the blood of the covenant. I call upon the atoning blood. I call upon the atoning blood. I call upon the atoning blood. I call upon the atoning blood, precious blood, holy blood, sacred blood. Hallelujah. तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम, खुद को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। Hallelujah. Father, thank you for that precious blood that Jesus just poured out like a fountain, so lavishly. Father, thank you, blood that is more glorious than anything else that you created in the universe. The blood that is the glory of heaven, blood that is precious than silver and gold and precious stones and diadems and jewels. Father, thank you for that precious blood that has atoned our sins, washed us, cleansed us, the blood that has made us your children. Hallelujah. Father, we belong to you. We are your blood children. हम तेरे खून की औलाद हैं. यीशु मसीह ने रिश्ता खून से बांधा है और यीशु मसीह ने ये रिश्ता अपने पवित्र खून से बांधा है, इंसानी खून से नहीं. हालेलुया. यीशु मसीह के जलाली लहू के लिए जो जिंदा है, हालेलुया, जो कुव्वत से भरा है, मसा से भरा है, जो स्वर्ग में पिता के हजूर में है, उस जलाली लहू के लिए हम आज आपका धन्यवाद करते हैं. लॉर्ड, उस लहू में मैं एक एक जन को छिपाता हूँ, एक एक जन को जो ऑनलाइन है. प्रभु, आई plead that blood over everybody that has logged in, everyone that is listening, the voice of your servant, which is your voice.
Hallelujah. Lord, every person is covered, sealed, and anointed in the blood of the Lamb. Hallelujah. We bless you. We praise you. हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति गाते हैं. हालेलुया. तेरे नाम को जलाल देते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में. आमीन. हालेलुया. आपको जय मसीह की. There are some people who are joining us from the United States. Welcome you in Jesus' mighty name. I would be speaking majority of the time in Hindi language, but I would appreciate if you could just hang on with us. Every now and then I'll be just giving some punchlines in English so that you also understand what we are talking about. Today we are going to be delving deeper into the book of Revelation, the 7th chapter. We have finished 6 chapters and we have finished the 6th seal. Today we are going to go onwards from 6th seal, and we will actually enter into first few or perhaps all the trumpets, the shofars that will be blown, and we'll have a panoramic view what the time is holding for people who defy God and do not accept the offer of the precious blood of His Son, the Lord Jesus Christ. Terrible times are going to come upon the earth. Indeed, terrible times. प्रकाशित वाक्य में बहुत ही बुरे दिन पृथ्वी पे आने वाले हैं. तो आज हम चलेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ जेनेसिस. प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय में जल्दी से हम स्टडी करेंगे. हालेलुया. प्रकाशित वाक्य उसका 7th चैप्टर निकालिए, रेवलेशन, एंड वी विल be looking into chapter number 7. Hallelujah. We have every now and then people from US, from Canada, from Britain, Australia, New Zealand, Fiji, from Caribbean island, from Belgium, from Italy, from Spain, from many other nations, and from far eastern countries. So we really praise God. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद. और 7 अध्याय प्रकाशित वाक्य आपने अगर निकाल लिया तो पहले वचन से हम पढ़ते हैं. रेवलेशन चैप्टर नंबर 7 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स नंबर 1. हालेलुया. अपनी अपनी बाइबल में निकालिए. रेवलेशन चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 1. हालेलुया. After these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor the sea, nor on any tree. क्या देखता है यूहन्ना? यूहन्ना देखता है कि 4 स्वर्गदूत खड़े हैं 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ. नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट पे 4 एंजल्स खड़े हैं, और परमेश्वर ने उन्हें क्या आदेश दिया है कि वो पृथ्वी के ऊपर बहने वाली 4 हवाओं को, 4 विंड को कैप्चर कर लें, सो दैट नो विंड ब्लोज अपॉन द अर्थ नॉर ऑन द ट्रीज. देखिए 7th सील के समय क्या होने जा रहा है. पृथ्वी के ऊपर हवा नहीं बहेगी. 4 winds will be seized by these mighty angels. Maybe these 4 angels are cherubim और seraphim, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये 4 हवाओं को बंद कर दिया जाएगा. आपको मालूम ये 4 विंड कौन सी हैं? सबसे पहली होती है, साइंस जो बताती है, प्रिवेलिंग विंड. प्रिवेलिंग विंड एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड तक बहती है, फ्रॉम वन एज ऑफ द ग्लोब टू द अदर एज. पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने की ओर बहती है, लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड. मासिव विंड होती है, ह्यूज वेव दैट गोज फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड. उसे बोलते हैं प्रिवेलिंग विंड. दूसरी विंड होती है ट्रेड विंड. ट्रेड विंड की पूरी जो मर्चेंट नेवी में लोग होते हैं, इन सारी विंड की स्टडी करते हैं, पर्टिकुलरली ट्रेड विंड. ट्रेड विंड एक्सट्रीमली स्टेडी विंड होती है. ये ट्रॉपिकल एरिया से, फ्रॉम वन ट्रॉपिकल एरिया टू इक्वेटोरियल साइड की तरफ बहती है, लो प्रेशर बेल्ट की तरफ. हायर प्रेशर बेल्ट से लोअर प्रेशर बेल्ट की तरफ ये हवा बहती है. इसे ट्रेड विंड कहा जाता है. तीसरी जो विंड होती है वो होती है पीरियोडिक विंड. पीरियोडिक विंड होती है चेंजिंग विंड, जिनके विषय में आप पढ़ेंगे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में, जब पॉल जर्नी करता है
ईस्टर्न यूरोप की ओर जाता है, जेरूसलम से और एथेंस की तरफ से जाता है, तो वो जो मर्चेंट नेवी के लोग होते हैं वो पीरियोडिक विंड की प्रतीक्षा करते हैं। पुरवैया जिसे कहते हैं, कमिंग फ्रॉम साउथ, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, कमिंग फ्रॉम ईस्ट, ये पीरियोडिक विंड्स होती हैं। और चौथी होती है लोकल विंड। लोकल विंड जो टेरिटोरियल प्रेशर में डिफरेंस होता है, अपर लेयर, लोअर लेयर, कोई हॉट लेयर, कोई कूलर लेयर होती हैं, किसी के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर मॉइस्चर कम, किसी के अंदर ज़्यादा होती है। लोकल विंड्स होती हैं और ये वेदर प्रिडिक्ट करती हैं। चारों की चारों हवाओं को परमेश्वर की ओर से आदेश दिया गया कि 4 दूत इन्हें पकड़ लें। हालेलुया। आपको बोलो अय्यूब अपनी किताब में क्या कहता है? अय्यूब बात करता है, अय्यूब की पुस्तक शायद आज से 3800 साल पहले लिखी गई। अय्यूब विंड के, हवा के वजन की बात करता है, दैट देयर इज वेट इन द एयर। साइंस, in the early ages people didn't believe this thing, but only 200 years back science discovered that the air has weight also. But God told his servant Job 3800 years ago. तो इन चारों विंड को क्या किया गया है? रोक लिया गया। हालेलुया। प्रिवेलिंग विंड, ट्रेड विंड, पीरियोडिक विंड एंड लोकल विंड, ताकि ये चले ना। अब जरा सोचें, अगर पृथ्वी पे हवा नहीं होगी तो क्या होगा? जो पृथ्वी के ऊपर एरिए हैं जो ओशन के साथ जुड़े नहीं हैं, समुद्रों के साथ जो जुड़े नहीं हैं, अगर हवा नहीं होगी तो वहाँ पे कभी रेन नहीं होगी। जो इनसाइड टेरिटरीज होती हैं नेशन की, वो सारी डेजर्ट बन जाएंगी, रेगिस्तान में बदल जाएंगी। उधर कोई ग्रीनरी नहीं होगी, उधर कोई क्रॉप नहीं होगी, उधर कोई हार्वेस्ट नहीं होगी। सिर्फ वो एरिए जो ओशंस के साथ सटे होंगे, सिर्फ वहां पे मॉइस्चर होगा। हालेलुया। सारी ट्रेड विंड स्टॉप हो जाएंगी। और आपको मालूम, ट्रीज नीड पॉलिनेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट चाहिए ट्रीज के, उनको फूड प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लैनेट के ऊपर रिलीज की जाती है, ट्रीज उन्हें कंज्यूम करें और ऑक्सीजन रिलीज करें। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी पृथ्वी पे बहुत कम हो जाएगी। इनफैक्ट इट विल बी वेरी वेरी हार्ड फॉर पीपल टू ब्रीथ। जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन टू द एयरप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स, हाउ विल दे फ्लाई जब चारों विंड रोक दी जाएंगी। सोचिए जरा। लेकिन एक अच्छी बात होगी कि टॉर्नेडो नहीं होंगे, हरिकेन्स नहीं होंगे। और एक चीज और आपको मालूम क्या होगी उस समय? जो एक्सट्रीम पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां वो एब्सोल्युटली फ्रीज हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। जो इक्वेटोरियल साइड्स हैं वो बहुत गर्म हो जाएंगी। तो पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर ऐसे शूट करेंगे क्रेजी ढंग में, एक्सट्रीम गर्मी और फ्रीजिंग कोल्ड, जहां की सब कुछ जम जाएगा। ऐसे वेदर हो जाएंगे। 7th चैप्टर नंबर 1 के अंदर लिखा है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? 7 चैप्टर उसकी 7 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िए जल्दी से प्लीज अपनी बाइबल में। फिर लिखा, एंड आई सॉ अनदर एंजल असेंडिंग फ्रॉम द ईस्ट। किस तरफ से आ रहा है ये एंजल? ईस्ट, इस साइड से। हम लोग ईस्ट की ओर बैठे हैं, जिधर से सन राइज करता है। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है, फ्रॉम द साइड ऑफ द राइजिंग सन, हैविंग द सील ऑफ द लिविंग गॉड, एंड ही क्राइड विद अ लाउड वॉइस टू 4 एंजल्स टू whom it was given to hurt the earth and the sea। ये टॉर्मेंटर हैं ये 4 एंजल्स। लेकिन एक एंजल आता है ईस्ट से, उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में सील है। किसकी? यहोवा परमेश्वर की। जैसे सिग्नेट रिंग होती थी राजाओं की, वो ऐसे लगाते थे। दिस एंजल इज कैरिंग द सील ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। और वो क्या कहता है? लिखा है 3rd वर्स में, सेइंग हर्ट नॉट द अर्थ नीदर sea nor the trees till we have sealed the servants of our God in their forehead। हालेलुया। वो कहता है अभी पृथ्वी पे कुछ मत करना चारों एंजल्स को, जब तक हम परमेश्वर के लोगों को क्या ना कर दें। जो लोग पृथ्वी के ऊपर प्रभु की ओर मुड़ेंगे 7 साल के शैतान के राज्य में, जूइश लोग जो प्रभु की ओर मुड़ेंगे,
अपोस्टेट चर्च, वो कलीसिया जो पीछे छूट जाएगी, उनमें से भी बहुत प्रभु की ओर मुड़ेंगे। आपको मालूम, जो कलीसिया के लोग पीछे छूट जाएंगे उनको ये बात पक्का हो जाएगी कि बाइबल सच्ची है। बाइबल सच्ची है, इसलिए उनके अपने रिश्तेदार रैप्चर में उठा लिए गए और वो रह गए, और कलाम उनके लिए एकदम जीवित हो जाएगा। वो जो प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, आस्था रखेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, बहुत टॉर्चर से गुजरेंगे, लेकिन यहां परमेश्वर क्या कर रहा है? उनको सील लगा रहा है। क्या कर रहा है? सील लगा रहा है। अगर आप पढ़ेंगे ना इसका रेवलेशन में ही आप पढ़ेंगे, आपको आगे जाना पड़ेगा 13-14 चैप्टर के अंदर, बाद में उसको हम देखेंगे। तो परमेश्वर अपने लोगों के मोहरें लगाता है, ताव का चिन्ह, ऐसे 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 ऐसे, ये ताव हैं द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, एंड आई हर्ड अ नंबर ऑफ देम विच वर सील्ड and there were sealed on 144,000 of all the tribes of the children of Israel। इनके विषय में आगे आप पढ़ते हैं 13-14 चैप्टर में। इज़राइल के गोत्रों के हर गोत्र में से 12-12 हज़ार लोग बचा लिए गए। हालेलुया। और उनको सील कर दिया गया। इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो विपत्तियां आने वाली हैं, अब ये आखिरी मोहर है, सील है, इसके टूटने के बाद तुरियां फूकी जाएंगी और परमेश्वर की रौत पृथ्वी पे उतर आएगी। हालेलुया। द रौथ ऑफ गॉड विल डिसेंड ऑन द अर्थ। परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी के ऊपर उतर आएगा। हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पे? आगे हम पढ़ते हैं इसका 9 वचन पढ़िए इसका। परमेश्वर की रौत उतरने वाली है, क्रोध। तो मैं चाहता हूँ इसका हम क्या कहते हैं, नहीं, इससे पहले हम पढ़ेंगे, लेट्स रीड वेरी वेरी पावरफुल स्क्रिप्चर्स। हालेलुया। आप हाँ जी, 4th वचन मैंने पढ़ दिया। एंड आई हर्ड द नंबर ऑफ देम विच वर सील्ड एंड देयर वर सील्ड एंड 144,000 of the tribe of the children of Israel, of each tribe of Judah were sealed 12,000। अब आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो एक एक जो इज़राइल की गोत्र है उसके 12-12 हज़ार लोग बचा लिए गए हैं। हालेलुया। अब इसका 9 वचन पढ़िए, पावरफुल स्क्रिप्चर। आफ्टर दिस आई बिहेल्ड एंड लो ए ग्रेट मल्टीट्यूड विच नो वन कुड number of all nations and kindred and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palm trees in their hands। ये मिड पॉइंट है ऑलमोस्ट ट्रिबुलेशन का। 3.5 साल चले गए तो बहुत बड़ी भीड़ स्वर्ग में है। और क्या लिखा है? ये हर जाति, कौम, धर्म, मजहब, भाषा से लिए गए हैं। और लिखा है वाइट रोब्स पहन के खड़े हैं मेमने के सिंहासन के आगे। एंड क्राइड विद लाउड वॉइस सेइंग साल्वेशन टू आवर गॉड विच सिटेथ अपॉन द थ्रोन एंड अनटू द लैम। हालेलुया। यहोवा जो सिंहासन पे बैठा है और मेमना जो सिंहासन पे बैठा है, दोनों अपने सिंहासन पे बैठे हैं। यहोवा परमेश्वर और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और लिखा है एंड ऑल द एंजल्स स्टूड राउंड अबाउट द थ्रोन एंड अबाउट द एल्डर्स एंड अबाउट द एल्डर एंड द 4 beasts एंड फेल बिफोर द थ्रोन ऑन देयर फेसेस एंड वर्शिप्ड गॉड। सभी यहोवा के मेमने के सिंहासन के आगे प्रोस्ट्रेट करके उसकी क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। उसकी महिमा कर, मैं पढ़ देता हूँ आगे भी। saying amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever, amen। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर की महिमा, उसकी बुद्धि, उसका पराक्रम, उसकी सामर्थ, उसका धन्यवाद युगानुयुग होता रहे। ये भीड़ यहोवा की स्तुति कर रही है। ये मिडल में से निकल के आई है, अभी मैं आपको बताता हूँ। And one of the elder answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes, and whence came they? 24 बुजुर्गों में से एक पूछता है, ये कौन है ये भीड़
ये जलाली वस्त्र सफ़ेद पहने भीड़ कौन है और ये कहाँ से आए हैं? तो लिखा है, एंड आई सेड अनटू हिम, सर दाउ नोएस्ट, एंड ही सेड टू मी, दीज आर दे विच केम आउट ऑफ द ग्रेट ट्रिबुलेशन। ये वो हैं जो महाक्लेश में से निकल के आए हैं। आपको मालूम, इस वर्ष के ऊपर बहुत से लोग बेस करते हैं कि कलीसिया का रैप्चर वो जो होगा वो मिड वे में होगा। एक प्री ट्रिब 27 से पहले 7 साल के, दूसरा मिड ट्रिब ट्रिबुलेशन के बीच में होगा। ये इसके ऊपर वो अपनी थियोलॉजी बेस करते हैं। हम मानते हैं कि कलीसिया 27 से इस महाक्लेश के शुरू होने से पहले उठा ली जाएगी, क्योंकि गॉड हैज़ नॉट अपॉइंटेड अस अनटू रॉथ। क्रोध के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया है। दूल्हा अपनी दुल्हन को 7 साल के घनघोर कलेश में इसलिए नहीं भेजेगा कि उसकी दुल्हन जलाली हो जाए, झुर्रियाँ दाग धब्बे दूर हो जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। वचन में लिखा है, हमारी एक धन्य आशा है, ब्लेसड होप के साथ हम उसके आगमन की ओर देख रहे हैं। वो आएगा, बादलों पे हमें उड़ा के ले जाएगा। तुरी फूकते ही, पलक झपकते हम सब अविनाशी दे लेके हवा में उड़ जाएंगे। ये हमारी धन्य आशा है। अगर 27 को पहले आना है, 7 साल के मसीह को बाद में आना है, तो फिर आपको तो एंटी क्राइस्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर धन्य आशा किस चीज़ की आपके पास? यू डोंट हैव टू लुक अप। जीसस ने कहा, लुक अप फॉर योर रिडेम्पशन ड्रॉएथ नाई। देन यू डोंट हैव टू लुक अप फॉर जीसस, यू हैव टू लुक अप फॉर द एंटी क्राइस्ट टू मैनिफेस्ट। ये वो लोग हैं भाई और बहनों, मैंने आपको बताया था, यह ये 14 वर्स का जो हिब्रू टेक्स्ट है, मैंने कई बड़े बड़े ग्रीक स्कॉलर्स की, और बहुत से विद्वान मानते हैं कि ये जो बाइबल है, ये जो रेवलेशन की बुक है, ये पहले हिब्रू में लिखी गई थी। इनफैक्ट कुछ बाइबल स्कॉलर तो ये मानते हैं कि सारी न्यू टेस्टामेंट की बुक्स हिब्रू में लिखी गई थी, बाद में उनको ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया। हालेलुया। तो जो इसकी ग्रीक ग्रामेटिकल टेक्सचर है वो ये बता रहा है कि ये जो भीड़ है, ये वो लोग हैं, जूइश रेमिनेंट हैं और अपोस्टेट चर्च का हिस्सा है, लेफ्ट बिहाइंड लोग हैं, और वो लोग हैं जो उस समय उद्धार पाते हैं 7 साल के शैतान के राज्य में। ये वो भीड़ है। और लिखा है, दे हैव वॉश, लिखा है एंड हैव वॉश्ड देयर रोब्स। तो ये जो ग्रीक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ग्रामर है इस सेंटेंस के लिए, वो ये बता रही कि कभी किसी समय इनकी रोब साफ नहीं थी, क्योंकि इनकी रोब्स प्योर नहीं थी, इनके अंदर तेल नहीं था, इसलिए उठाए नहीं गए। ये वो 5 फूलिश वर्जन का हिस्सा जो पीछे रह गए। लेकिन अब इन्होंने अपने वस्त्र तैयार कर लिए, तो ये उठा लिए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, इन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहने हैं और इनके हाथ में पाम ट्री ब्रांचेस हैं। आपको मालूम, सफ़ेद वस्त्र जूइश लोग पहनते हैं योम किपुर के दिन, जो प्रायश्चित का दिन होता है, उस दिन वस्त्र पहने जाते हैं। और योम किपुर के एग्जैक्ट बाद में जो पर्व आता है वो होता है झोपड़ियों का पर्व, सुका बोलते हैं उसको, सुका। योम किपुर प्रायश्चित का दिन, उसके बाद आता है सुका, जिसे आप बोलते हो फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। और टैबरनेकल की फीस्ट जब बनाई जाती है तो पाम ट्री ब्रांचेस की हट बनाते हैं लोग, उसके अंदर रहते हैं, अपने घरों को छोड़ देते हैं और पाम ट्री की ब्रांचेस के साथ झोपड़ियां बना के उसमें रहते हैं। और वो ये याद करते हैं कि उनके पुरखे मरुभूमि में जब भटक रहे थे 40 साल, तो कैसे सनातन की चट्टान यहोवा उनके संग संग था, और उसको कमेमोरेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और यहोवा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये वो लोग हैं, हालेलुया, जो मिड ट्रिब में गए हैं प्रभु के पास। अब मैं आपको लेके चलना चाहता हूं, जल्दी से आइए आप 8 अध्याय में, 8 अध्याय के अंदर आइए और उसका पहला वचन पढ़िए। रेवलेशन चैप्टर 8 एंड वर्स नंबर 1। यहाँ लिखा, एंड व्हेन ही हैड ओपन्ड द 7th सील देयर वाज साइलेंस इन हेवन अबाउट द स्पेस ऑफ हाफ एन आवर। आखिरी मोहर खुल रही है। ये स्क्रोल है भाई और बहनों, एक बुक है जिसको सील्स लगी हैं अंदर बाहर से, लिखी गई है दोनों तरफ से। ये स्क्रोल है, ये पूरी दुनिया का वसीयतनामा है, टाइटल डीड है। इसको जीसस ने हासिल किया है, शैतान से जीता है। ये जब खुल रही है, मोहरें टूट रही हैं, तो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग चीज़ें अनफोल्ड होती जा रही हैं। हालेलुया। तो अब हेवन में क्या है?
हाफ एन आवर की साइलेंस है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि हम इसके अगले वचन भी पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसके 2 वचन से पढ़ें। एंड आई सॉ द 7 एंजल विच स्टूड बिफोर गॉड एंड टू देम वर गिवन 7 ट्रम्पेट। अब परमेश्वर की रौत शुरू होने वाली है। शोफार्स हैं ये 7 एंजल को दिए गए हैं। अब ये ब्लो करेंगे 7 माइटी एंजल्स। हनूक इन 7 एंजल्स के नाम बताता है। बाइबल सिर्फ माइकल और गैब्रियल का नाम बताती है, लेकिन हनूक अपनी पुस्तक में बाकी के 5 के नाम भी बताता है। ये 7 एंजल्स जेनेसिस चैप्टर 1 से लेके रेवलेशन चैप्टर 1 से लेके रेवलेशन 22 चैप्टर तक हैं। पूरी बुक के अंदर ये 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड हैं, परमेश्वर की 7 आंखें। इनके ही द्वारा पृथ्वी में यहोवा परमेश्वर सब कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है इनको ट्रम्पेट दी गई हैं, शोफार्स। नाउ द रॉथ ऑफ गॉड इज कमिंग। अब परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। अभी तक अनुग्रह है, इसलिए अभी अगर आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी नहीं बनाया, अभी अपना जीवन उसे दे दीजिए। ये बड़ा सुनहरी अवसर है। आज ही मोक्ष का दिन, निर्वाण का, उद्धार का दिन है। यही घड़ी मुक्ति की है। उसे अपना जीवन अर्पण कीजिए, वरना ये समय आ रहा है मैं आपको बताऊंगा कि कितना कठिन समय है ये। वचन में लिखा उनको तुरियां दी गई हैं, ट्रम्पेट ब्लो करने के लिए दी गई है। हर एक ट्रम्पेट के बाद बहुत जबरदस्त परमेश्वर का क्रोध उंडेला जा रहा है पृथ्वी के ऊपर। तो वचन में लिखा है एंड अनदर एंजल केम एंड स्टूड एट द ऑल्टर हैविंग अ गोल्डन सेंसर। इस एंजल के पास क्या है? हाँ जी, इस एंजल के पास है गोल्डन सेंसर। हालेलुया। पढ़ लीजिएगा आप लेविटिकस उसका 16 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़िएगा। लेविटिकस 16, 12 और 13 और 14 वचन पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। ये सेंसर है, एक कलश है सोने का, सोने की लंबी चेन लगी हुई है उसको। मैंने पिक्चर डाली है इसकी, एक आप पोस्ट में देख सकते हैं। तो ये एक एंजल को दिया गया है। हालेलुया। आपको मालूम है किसके पास होता था? अगर आप पढ़ेंगे ना लेविटिकस 16, 12, 13 एंड 14 तो आपको पता लगेगा। हाई प्रीस्ट जो होता था, महायाजक, साल में एक दिन केवल प्रभु के पास जा सकता था। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत प्रेशियस, बहुत रेयर थी। परमेश्वर ने इस्राएलियों को सिखाया कि ऑ और रेवरेंस क्या होता है, पवित्र परमेश्वर से कैसे डील किया जाता है। कलीसिया ने परमेश्वर की पवित्रताई को एब्सोल्युटली कंप्रोमाइज किया है। एक अजीब जीसस को पेश किया गया है। ही इज एब्सोल्युटली होली गॉड। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। तो महायाजक क्या करता था आपको मालूम? महायाजक को बुल का लहू लेना पड़ता था, और वो बुल के लहू को क्या करता था? जो होली प्लेस के अंदर होती थी, गोल्डन इंसेंस की ऑल्टर, जहाँ से वो आग लेता था और इंसेंस लेता था और बुल का ब्लड लेके जाता था और 7 जगह उसे लगाता था। आपको मालूम महायाजक ये गोल्डन सेंसर लेता क्यों था? ये गोल्डन सेंसर लेता था, इसमें जगवेदी की आग डालता था। जगवेदी की आग डाल के उसके ऊपर इंसेंस डालता था। वो जो इंसेंस होती थी, जिसे धूप कह दीजिए, वो बहुत कीमती चीज़ों से बनाई जाती थी और वो फार्मूला कोई इस्राएली रिपीट नहीं कर सकता था। बहुत कीमती होती थी इंसेंस वो, और अति पवित्र, और उसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती थी, अरोमा। और वो जब जलती थी आग पे तो एक क्लाउड पैदा होता था, धुएं का, जलाली धुएं का बादल पैदा होता था। आपको मालूम कर्टन होता था पवित्र स्थान में और अति पवित्र स्थान दूसरी तरफ होता था, बहुत थिक कर्टन,
लगभग 7-8 इंचेस थिक कर्टन, अलग अलग किस्म के जानवरों की खाल की कर्टन बने हुए थे। उनके अंदर गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी की थी, उनके अंदर सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी की गई थी, उसके अंदर हाथी के दांत का काम था। और अगर आप पढ़ेंगे थोड़ी हिस्ट्री, 72 मेड्स इसराइली जवान लड़कियां उसे बनाती थी, और वो बहुत हैवी और बहुत शक्तिशाली होता था। और वो जो वेल जिसे हम बोलते हैं, पर्दा बोलते हैं, उसे कुंवारियाँ 72 लड़कियाँ बनाती थीं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर दोनों डायरेक्शन में, उलट डायरेक्शन में हाथियों को लगा दिया जाए और वो उलट तरफ खींचें तो भी वो कर्टन फटता नहीं था। इतना ज़बरदस्त कर्टन था जो हैकल के अंदर, मंदिर के अंदर पवित्र स्थान को अति पवित्र स्थान से सेपरेट करता था। तो पवित्र स्थान में महायाजक इस कलश के अंदर, जिसे हम सेंसर बोलते हैं, एक सोने का कटोरा, उसको चेन लगी होती थी सोने की, उसके अंदर आग लेता था जो जगवेदी पे जलती थी, और उसके अंदर इंसेंस मिलाता था और एक क्लाउड पैदा होता था। बहुत सारे यहूदी रब्बी मानते हैं जब वो क्लाउड जलाल का पैदा होता था, वो क्लाउड उस महायाजक को पर्दे के बीच में से ट्रांसपोर्ट कर देता था। पर्दे के बीच में से ऐसे निकल जाता था महायाजक जलाल के द्वारा। आपको मालूम, क्योंकि पर्दे में दरवाज़ा नहीं था। आपको मालूम पर्दे के अंदर दरवाज़ा क्यों नहीं था? क्योंकि वो अभी पृथ्वी पे आया नहीं था जिसने ये कहना था मैं दरवाज़ा हूँ। कौन है दरवाज़ा? डोर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अति पवित्र स्थान तक, परमेश्वर की करुणा की वेदी तक पहुंचने के लिए एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का जलाली लहू। तो महायाजक जलाल के बादल से जाता था और अति पवित्र स्थान में यहोवा की पवित्र हजूरी साया करती थी। वहाँ पे अगर महायाजक के जीवन में रत्ती भर भी पाप हो तो पवित्र हजूरी उसे मार देती थी। इसलिए महायाजक की जो पोशाक होती थी उसके नीचे छोटे छोटे घुंघरू लगे होते थे। वो खड़ा रह के यहोवा की आराधना करता था, महायाजक की सेवा, और घूमता था तो घंटियों की आवाज़ आती थी और बाहर इस्राएली प्रजा को आवाज़ सुनाई देती थी, और वो जानते थे कि हमारा महायाजक अभी तक जीवित है। अगर वो घंटियों की आवाज़ बंद हो जाती थी तो महायाजक की पोशाक के साथ रस्सी बंधी होती थी, क्योंकि अगर महायाजक की मौत हो गई अति पवित्र स्थान में तो कौन सा साधारण यहूदी उसकी लाश को अंदर से ला सकता है? प्रधान याजक की मृत्यु हो गई तो उसे रस्सी से खींचा जाता था। आपको मालूम, वो जो धुएं का जलाल का बद्दल बनता था जो इंसेंस लेके जाता था, सेंसर यहां पे जो लिखा है, कलश जिसके अंदर धूप या इंसेंस जलती थी, वो बादल जो बनता था जलाल का, वो परमेश्वर की ऐद के संदूक को, वाचा के संदूक को ढांक देता था। कहीं ऐसा ना हो कि उसे यहोवा का जलाल दिखाई दे और उसकी मौत हो जाए। आपको मालूम 5 बार लिखा है पुराने नियम में। प्रभु मूसा से क्या कहता है? प्रभु मूसा से कहता है, ये देखिए, ये है जगवेदी, ये ऐद का संदूक है, देख रहे हैं आप? ये जो ऐद का संदूक है, इसके ऊपर ऐसे क्रूब बने हैं। ये जो जगह है, ये जो नीचे बीच में जगह है, इसे बोला जाता है मर्सी सीट, करुणा की वेदी। इस जगह पे लहू उंडेला जाता था। महायाजक पहले बुल का, भैंस, जिसे बुल को क्या बोलेंगे? ऑक्स बोलेंगे, भैंसा बोलेंगे, बैल बोलेंगे। बैल का लहू इधर चढ़ाता था। बैल का लहू होता था महायाजक के अपने पाप के लिए। ये देखिए, ये लेके जा रहे हैं ऐद के संदूक को याजक लोग। ये जो ऐद का संदूक है, ये एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है। ये जो पर हैं क्रूबों के आपस में मिलते थे और इसे ढांक के रखते थे। इसके ऊपर 2 क्रूब हैं, लेकिन मैं मानता हूँ, मेरा अपना ऐसा दर्शन है कि इस पे 3 क्रूब हुआ करते थे शायद। एक गिरा दिया गया है जिसने बदकारी की, जिसके अंदर कुटिलता पाई गई। तो खैर, यहाँ पे लहू उंडेला जाता था और ये जो क्रूबों के पंख आपस में मिले होते थे और जहाँ लहू उंडेला जाता था, ये स्पेस होता था, इसके बीच में यहोवा का जलाल फड़फड़ाता था। और प्रभु मूसा से 5 बार कहता है, इसके बीच में मैं तुझसे बातें करूँगा। यहाँ पे मिलता था यहोवा, इसके बीच में ब्लड के ऊपर पवित्र आत्मा, उसका जलाल साया करता था। लहू के ऊपर, लहू के ऊपर यहोवा रहता था और मूसा से मिलता था, और कहीं नहीं मिलता था यहोवा परमेश्वर। सो महायाजक को अपने लिए ब्लड लेके जाना पड़ता था। आपको मालूम, मूसा को प्रभु ने क्या बताया कि ये जो तंबू तूने बनाया है, ये स्वर्ग के
हैकल का, तंबू का पूरा पूरा नक्शा है, एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है वो। और अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 7, 11 और 12 वचन पढ़िएगा ध्यान से, वहां पे लिखा है यीशु मसीह भी अति पवित्र स्थान में गया, लेकिन जैसे महायाजक को यहां पे जाने के लिए बुल का ब्लड लेके जाना पड़ता था अपने लिए, यीशु मसीह को अपने लिए ब्लड लेके जाना नहीं पड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह अपना ही ब्लड लेके गया, बकरों, छतरों, मेमनों का ब्लड नहीं लेके गया, अपना अति पवित्र ब्लड लेके गया और यहां चढ़ा दिया। और स्वर्ग ने मानव जाति की मुक्ति का द्वार खोल दिया है। अब जो कोई यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। सिर्फ यीशु मसीह के नाम को पुकारे जाने से एक इंसान स्वर्ग चला जाएगा। समझते सुसमाचार कितना जबरदस्त है। कोई एक पापी व्यक्ति जीवन भर पाप करने के बाद यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनता है और उस पर विश्वास करता है और प्रभु का नाम पुकारता है, वो नाम पुकारने से नरक जाने वाला व्यक्ति स्वर्ग चला जाएगा और परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाएगा, स्वर्गीय मिरास का हकदार बन जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मुक्ति को अपने लहू के द्वारा खरीद लिया। स्वर्ग ने यीशु मसीह के पवित्र लहू को स्वीकार कर लिया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद। हालेलुया। आपको मालूम, महायाजक उस गोल्डन सेंसर के अंदर इंसेंस डाल के आग लेता था और उसे किसके आगे चढ़ाता था? जाके यहोवा के आगे। वो इंसेंस जो होती थी, हालेलुया, क्या लिखा है वचन के अंदर? मैं पढ़ दूं वचन आपको। वचन में लिखा है, चौथा वचन 8 का 4, एंड द स्मोक ऑफ द इंसेंस विच केम विद द प्रेयर ऑफ द सेंट असेंडेड अप बिफोर गॉड आउट ऑफ द एंजल्स हैंड। एंजल ने जाके चढ़ाई। पहले ये कौन चढ़ाता था पहले पृथ्वी पे? महायाजक। महायाजक यहोवा के आगे धूप लेके जाता था, उसका धुआं चढ़ता था। वो प्रार्थनाएं हैं, आपकी और मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए सूंघने वाली खुशबू होना चाहिए। इसीलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर पापी की दुआ नहीं सुनता। दुष्टता में जो लगा रहता है उसकी प्रार्थना यहोवा के आगे घृणित है, क्योंकि वो उसकी नथनों में दुर्गंध पैदा करती है। आपकी प्रार्थना स्वीट अरोमा होना चाहिए प्रभु के आगे। तो एंजल क्या कर रहा है स्वर्ग के अंदर? आपको मालूम, पहले वचन में हमने पढ़ा आधे घंटे के लिए साइलेंस क्यों है? क्यों स्वर्ग खामोश है? सारी एक्टिविटीज बंद हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है हेवन में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने संतों की दुआ सुनने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थनाएं उसके आगे लिखा है, एंड द स्मोक ऑफ द इंसेंस विच केम विद द प्रेयर ऑफ द सेंट्स असेंडेड अप बिफोर गॉड आउट ऑफ द एंजल्स हैंड। महायाजक प्रार्थनाएं लेके जाता था प्रभु के आगे। महायाजक चाहिए, एक सच्चा गडरिया, सच्चा पास्टर महायाजक होना चाहिए, जो मनुष्यों की प्रार्थनाओं को यहोवा के आगे अर्पण करे। लेकिन अब वचन बताता है, आप और मैं, हम सभी रॉयल प्रीस्टहुड हैं। अब आपको किसी एक व्यक्ति के माध्यम की जरूरत नहीं कि वो आपकी प्रार्थना प्रभु के पास लेके जाए। यू ऑल आर किंग्स एंड प्रीस्ट्स बिफोर गॉड। आप सभी, आपको जरूरत नहीं है कि ऐसे सर कर दें अपना और ऐसे कोई हाथ रख के प्रार्थना करे आपके लिए। ये कस्टम ट्रेडिशन बनाया लोगों ने, से हाथ रखा ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करना बुरी बात है, नहीं नहीं नहीं, प्रभु की ओर से है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता, आप स्वयं याजक हो, आप असल में किंगली याजक हो। यू डोंट नीड to just, lower your head before somebody who is so-called prophet and apostle, and he may lay hand and you may receive blessing. You yourself have been made by God both king and priest. You now, through the Holy Spirit, via that path that Jesus paved with his precious blood, you access the very presence of God. You go right over here in the mighty name of Jesus. The blood of Jesus created a divine path. It is not the path of religion. It is the path that is paved in the blood of Jesus. You have access here, and here you go with great boldness. आप हियाब के साथ यहां जाते हो। कहां पे? यहां पे हियाब के साथ। पुराने नियम में वचन में लिखा, डरते कांपते आओ।
आप डरते कांपते जाते थे, लेकिन अब यीशु मसीह के लहू के कारण आप यहां पे आते हो दिलेरी से और उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हो। सबसे बड़ी प्रिविलेज, आप सबसे बड़ा टाइटल अपोस्टल, प्रॉफिट, पापा जी, डैडी जी, सबसे बड़ा जो टाइटल वो चीफ अपोस्टल या ओवर आर्चिंग बिशप या ओवर आर्चिंग बिशप या पोप या कार्डिनल का नहीं है। सबसे बड़ा टाइटल है कि आप सृष्टि के रचयिता को अपना पिता कह के बुला सकते हो। यीशु मसीह कहते थे अवून द्वशमयो, मेरे स्वर्गीय पिता। यीशु मसीह फिर एक जगह कहते हैं अवीनु मलखीनु, मेरे बाप, मेरे राजा। ये हक आपको मिल गया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह की सलीबी मौत के कारण ये अधिकार आपको मिला। हालेलुया। और आपको मालूम, पुराने नियम का महायाजक अपने लिए बुल का ब्लड लेके जाता था, कहीं मर ना जाए। हमारा महायाजक अपना लहू लेके गया। और आपको मालूम, ये महायाजक खड़ा होकर सेवा करता था और वो घुंघरों की, घंटियों की आवाज़ आती थी। आपको मालूम घंटियों की आवाज़ क्या है? वो घंटियों की आवाज़ हो बरा 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 गदला बना बरा गदला शे देने दे गदले बने दे बेरे गदले हेले रे गदने के दिन। ये अन्य भाषाएं हैं, समझिए आप। हालेलुया। लेकिन हमारा महायाजक पिता के आगे खड़ा होकर सेवकाई नहीं करता, पिता के दाहिने हाथ बैठा है, बिकॉज ही इज को यूकल विद द फादर। हालेलुया। वो अनक्रिएटेड, इटर्नल, एवरलास्टिंग सन ऑफ गॉड है। वो क्रिएटेड बीइंग नहीं है। वो इटर्नल हाई प्रीस्ट है यहोवा का, आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मेल्किजेदेक। वो मल्की सिदक याजक है। वो हारून सरीखा याजक नहीं है। वो अबतार, अबियातार जैसा या ज़ेडोक के घराने का याजक नहीं है। वो मल्की सिदक है, मल्की सिदक सरीखा महायाजक है। और उसके दाहिने हाथ बैठा क्या कर रहा है? आपके और मेरे लिए मध्यस्थता की प्रार्थनाएं कर रहा है। आपको मालूम अब क्या होता है? देखिए अब ध्यान से, बड़ी अद्भुत बात आपको बताने जा रहा हूं। इसका 5 वचन पढ़ें। एंजल ने, पहले 4 पढ़ता हूं। एंड द स्मोक ऑफ द इंसेंस विच केम विद द प्रेयर्स ऑफ द सेंट असेंडेड अप बिफोर गॉड आउट ऑफ एंजल्स हैंड्स। सारी प्रार्थनाएं किसके पास पहुंच गई? यहोवा के पास। अब पढ़ें आगे। नाउ रीड रेवलेशन चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स नंबर 5। एंड द एंजल टुक द censer and filled it with fire of the altar and cast it into the earth, and there were voices and thundering and lightning and an earthquake. What happened now? That incense that burnt before God of Israel, with fire, it ascended before his throne. Now what happened? And the angel took the censer and filled it with fire of the altar. First he presented it to God, the incense. It went into the nostrils of God of Israel. He hearkened unto the prayer of all ages, of all saints, their cries. वचन में लिखा है, the martyrs are crying near the altar and they are asking God, how long, when will you avenge our blood? Now God is hearkening unto the prayer. अब परमेश्वर प्रार्थनाएं सुन रहा है और वो सब प्रार्थनाएं परमेश्वर के हुजूर में पहुंच गईं। उसके तुरंत बाद एंजल ने क्या किया? The angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it into the earth. अब 5वें वचन में लिखा है, स्वर्गदूत ने पृथ्वी के ऊपर उंडेल दी आग। परमेश्वर का एंगर आ गया पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी के ऊपर उतर आया। हालेलुया। ये पहले स्वर्ग को चढ़ता था, अब स्वर्ग ने कटोरा किधर उल्टा कर दिया? पृथ्वी पे। क्योंकि पृथ्वी के लोग प्रभु की ओर मुड़ नहीं रहे। आपको मालूम, अभी भी लोगों की रिपेंटेंस, कोरोना आने के बाद भी क्रिश्चियन लोगों की रिपेंटेंस स्किन डीप है, मुड़े नहीं प्रभु की ओर। अभी भी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, अभी भी बड़े आशावस्त वचन बोल रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे को। चर्चों के अंदर क्रिश्चियन एंटरटेन करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग टीच करते हैं, साइकोलॉजी टीच करते हैं, मेटाफिजिकल साइंस टीच करते हैं, मोटिवेशनल प्रीचिंग टीच करते हैं। परमेश्वर का जिंदा कलाम नहीं सिखाते। तोड़ रहे हैं परमेश्वर के कलाम को, मरोड़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, पलटिए प्रभु की ओर, वरना न्याय होगा। वो पूछेगा कि जो कलाम तूने दिया वो तोड़ा मरोड़ा और स्वार्थी था,
तूने अपने मकसद के लिए बीजो और वड्डो, वड्डा मीन वड्डी बरकत अपने खीसे भरने के लिए किया है, और प्रभु अवश्य न्याय करेगा। अब एंगर के रौथ को पृथ्वी के ऊपर उंडेल दिया गया है। अब देखिए होता क्या है। मुझे लग रहा है कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम काफ़ी हो चुका है, लेकिन फिर भी चलो मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हो थोड़ा और मैं आगे बताऊँ तो जस्ट प्लीज़ इंडिकेट सो दैट आई नो दैट यू आर इंटरेस्टेड, यू वांट मी टू कंटिन्यू। हालेलुया। तो क्या होता है, जैसे ये कटोरा आग भर के पृथ्वी पे उंडेल दिया जाता है, परमेश्वर की रौत, परमेश्वर का एंगर पृथ्वी पे आ जाता है। अब आप देखते जाइए, पहली ट्रम्पेट है 6 अध्याय में, दूसरी ट्रम्पेट है 6 वचन में। अगर आप पढ़ेंगे 8 का 6 और 7 तो पहली तुरी फूकी गई, 8 और 9 पढ़ेंगे दूसरी ट्रम्पेट, दूसरी तुरही, 10 11 तीसरी तुरही, और 12 13 चौथी तुरही, और 9 अध्याय के पहले वचन में 5वीं तुरही, और इसके बाद 13 वचन से 9 अध्याय के 6ठी तुरही, और इसके बाद बीच में एक इंटरल्यूड आ जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा भी और बताता हूँ, मेरे संग आप निकालें 8 अध्याय का 6-7 वचन। पहली तुरी को देखें हम। पहली तुरी जब पहली शोफार ब्लो की जाती है तो क्या होता है, फर्स्ट ट्रम्पेट जब ब्लो की जाती है, हेल फायर मिक्स्ड विद, हेल फायर मिक्स करके कहाँ पे आ रहे हैं, पृथ्वी पे। पढ़ लीजिए। 7 angels which had the 7 trumpets prepared themselves to sound. One by one they will sound the trumpet. First angel sounded and there followed hail and fire mingled with blood. Hail, fire. क्या क्या आ रहा है, हेल एंड फायर। क्या लिखा है हिंदी में, मैं एक सेकंड पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय, और उसका मैं पढ़ूंगा 6 से। यहाँ लिखा, तब 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियाँ थी उन्हें फूकने के लिए तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और लहू से मिले हुए औले और आग, कॉम्बिनेशन देखिए, औले भी आ रहे हैं और आग भी आ रही है, और संग में क्या मिला हुआ है, खून मिला है। और ये कहाँ से फेंका जा रहा है, स्वर्ग से, स्वर्ग से आ रहा है। ये रॉथ ऑफ गॉड है। अब बरकतां दी बारिश मत कहिए, बरकतां दी बारिश, बरकतां दी बारिश। बहुत पादरी लोग लगांदे पोस्टर बरकतां दी बारिश, 2 कणियां भी नहीं डिगदियां उत्थे परमेश्वर दी बरकत दी। नाम बड़े और दर्शन छोटे। बड़े बड़े डायलॉग लिखते हैं बैनर के ऊपर, बड़े बड़े फैंसी कैची, जैसे अमेरिका में पास्टर लोग यूज़ करते हैं और अफ्रीका में बड़े बड़े ब्रेक थ्रू सर्विस, सुपर ब्लेसिंग सर्विस, क्रॉस ओवर सर्विस, रियलाइज योर ड्रीम सर्विस, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कैची बातें लिखते हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है उसकी रौथ आ रही है पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि लोगों ने अपना दिल प्रभु की ओर नहीं मोड़ा। हालेलुया। हेल फायर मिक्स्ड विद ब्लड इज कमिंग टू द अर्थ। हालेलुया। और फिर आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है इसमें, मैं पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, अपॉन द अर्थ एंड 3rd part ऑफ द ट्री वॉज बर्नट अप एंड ऑल द ग्रीन ग्रास वॉज बर्नट अप। उससे क्या हो गया कि 3rd part, तीसरा हिस्सा दरख्त जल गए और सारा हरा घास तीसरा हिस्सा जल गया। हालेलुया। उसके बाद यहाँ पे पढ़े आप 8 वचन से, एंड सेकंड एंजल साउंडेड एज इट वर ग्रेट माउंटेन बर्निंग विद फायर वॉज कास्ट इन टू द सी। दूसरे ने जब तुरी फूकी तो क्या हुआ, एक बड़ा पहाड़, एस्टेरॉयड होगा शायद ये बड़ा एस्टेरॉयड कहाँ गिर गया, क्या लिखा यहाँ पे, माउंटेन बर्निंग विद फायर वॉज कास्ट इन टू द सी एंड द 3rd part ऑफ द सी बिकेम ब्लड। समुंदर में गिरा आके और समुंदर लहू की तरह लाल हो गया। लिखा है, एंड द 3rd part ऑफ द क्रीचर विच वर इन द सी
had life died and the third part of the ship were destroyed. थर्ड, वन थर्ड, बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं। अब अगर पढ़ेंगे हम इसका 10 वचन से, यहाँ पे लिखा है, एंड द थर्ड एंजल साउंडेड एंड देयर फेल ए ग्रेट स्टार फ्रॉम हेवन बर्निंग एज इट वर ए लैम्प एंड इट फेल अपॉन द थर्ड पार्ट ऑफ द रिवर एंड अपॉन द फाउंटेन्स ऑफ वाटर एंड द नेम ऑफ द स्टार इज कॉल्ड वर्मवुड। आपको मालूम, अभी नासा के साइंटिस्ट देख रहे हैं कि एक प्लैनेट एक्स कह रहे हैं उसको, जो आने वाला है पृथ्वी के ऊपर, इट्स ऑलरेडी सूर्य की परिक्रमा के अंदर घूम रहा है। इट्स कमिंग। जो वचन में लिखा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं साइंटिस्ट अभी। हालेलुया। और क्या लिखा है? ये लिखा है, इसका वर्मवुड इसका नाम है, और इससे पानी बिटर हो गए हैं। अब पढ़िए आप 12 वचन। 12 वचन जब आप पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, एंड द फोर्थ एंजल साउंडेड एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द सन वाज स्मिटन। अब चौथी शोफार ब्लो किया जा रहा है। जब ये शोफार ब्लो किया गया तो लिखा, थर्ड पार्ट ऑफ द सन वाज स्मिटन एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द मून एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टार्स, सो द थर्ड पार्ट ऑफ देम वाज डार्कन्ड एंड द डे शोन नॉट फॉर अ थर्ड पार्ट ऑफ इट एंड द नाइट लाइकवाइज। 1/3 सूरज का काला हो गया, 1/3 मून और 1/3 स्टार। मून का मैं समझ सकता हूं और मैं सन का भी समझ सकता हूं कि वोल्केनिक ऐश ऊपर चली गई या ऊपर एक्सप्लोजन हुआ किसी प्लेनेट के अंदर या स्टार्स के अंदर, कोई डस्ट एस्टेरॉयड आया ऊपर से, उसकी वजह से 1/3 हिस्सा ढक गया। लेकिन स्टार्स सोचिए, कितनी बड़ी कैनपी है आसमान में, पूरे का पूरा आसमान, इसका होराइजन पता नहीं है, होराइजन का एंड नहीं पता वैज्ञानिकों को। इसका 1/3 हिस्सा काला हो गया। इट इज समथिंग ह्यूज, मसिव। क्या हो रहा है? पृथ्वी के ऊपर कलामिटीज आ रही हैं, नेचर के अंदर कलामिटीज आ रही हैं, ओशन के अंदर कलामिटीज आ रही हैं, विंड हवा चलनी बंद हो गई है, खाना भोजन कुछ नहीं रहा पृथ्वी के ऊपर, सी क्रीचर मारे जा रहे हैं, एनिमल्स मारे जा रहे हैं, माउंटेन जो हैं वो, उनको आग लगी वो नीचे गिराए जा रहे हैं, सेलेशियल बॉडी इन हेवन दे ऑल आर इन ग्रेट टर्मोइल, ओशन रिवर्स दे आर इन ऑल ह्यूज टर्मोइल। पृथ्वी के ऊपर इतना बुरा समय आ गया है। हालेलुया। सच बैड टाइम इज कम अपॉन द अर्थ। और पढ़ें आप, अगर इसका 13 वचन पढ़ें, एंड आई बिहेल्ड एंड हर्ड एन एंजल फ्लाइंग थ्रू द मिड्स ऑफ हेवन। दिस कुड बी वन ऑफ द चेरुबिम्स और वी डोंट नो, बट इट्स फ्लाइंग in the midst of heaven and saying with a loud voice, woe, woe, woe to the inhabitants of the earth by the reason of other voices of the trumpet of the 3 angels which are yet to sound। हाय हाय पृथ्वी के ऊपर रहने वालों के लिए, क्योंकि अभी पृथ्वी के ऊपर बड़े घनघोर सताव आने वाले हैं, बहुत बड़ा दुख आने वाला। मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए 9 अध्याय में से 9th चैप्टर, 5th ट्रम्पेट, 5वीं शोफार ब्लो हो रही है। एंड द 5th एंजल साउंडेड एंड आई सॉ ए स्टार फेल फ्रॉम हेवन unto the earth and to him was given the key of the bottomless pit। अब ध्यान से देखिए, अब लिखा है ए स्टार फेल फ्रॉम हेवन। इट इज नॉट एस्टेरॉयड, मीटरॉयड, इट्स नॉट एनी फिजिकल स्टार फॉलिंग ऑन द अर्थ। इसके लिए यहाँ पे ग्रीक में पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया। यहाँ पे लिखा है एंड टू हिम वॉज गिवन। ये एक एंजल है, ये एक एंजल जो हेवन से गिरा है। गुड और बैड आई डोंट नो, बिकॉज आई कैंट अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, द टेक्स्ट ओनली से एगलोस। तो इसको क्या दिया गया इस एंजल को? की ऑफ द बॉटमलेस पिट। एक बॉटमलेस पिट है नीचे, वो नेगेटिव डिमेंशन है, जमीन के बहुत नीचे, उसका बेस नहीं है, उसके अंदर कुछ एंजल्स को इनकारसरेट किया है, कुछ दूतों को नीचे डाला गया है। ये वॉचर्स हैं जिन्होंने 6 अध्याय जेनेसिस में औरतों के संग रिलेशनशिप बनाया और जिनके द्वारा
ह्यूमन डीएनए पोल्यूट किया गया, हाइब्रिड पैदा किए गए, जिनके द्वारा नफलीम पैदा हुए, गिबरीम पैदा हुए, जिन्होंने पृथ्वी को सिन से, परवर्जन से, लाइसेंशियसनेस से, बदकारी से भर दिया, स्त्रियों के साथ मॉन्ग्रियल रेस तैयार की जिन्होंने ह्यूमन डीएनए को कंटेमिनेट कर दिया, जानवरों के साथ जानवर हाइब्रिड कर दिए गंदे काम करके, पंछी हाइब्रिड कर दिए, मैमल हाइब्रिड कर दिए, इवन की वेजिटेशन का डीएनए स्पॉइल कर दिया उन्होंने। परमेश्वर की पूरी क्रिएशन को, परमेश्वर के सिग्नेचर को मिटाना चाहा उन गंदे फरिश्तों ने। तो क्या लिखा वचन के अंदर? वचन में लिखा वो सब बॉटमलेस पिट में फेंके गए। टार्टरस ग्रीक वर्ड प्रेरित पत्थर से इस्तेमाल करता है। बॉटमलेस पिट के अंदर ये एक एंजल को फेंका गया है और उसको ताला लगाया गया ऊपर से। क्या लिखा है? एंड ही ओपन द बॉटमलेस पिट एंड देयर अरोज ए स्मोक आउट ऑफ द पिट एज द स्मोक ऑफ द ग्रेट फर्नेस एंड द सन एंड द एयर वर डार्कन्ड बाय द रीजन ऑफ द स्मोक ऑफ द पिट। बहुत खतरनाक बीच में से धुआं उठा उस पिट के अंदर से। और क्या लिखा है? एंड देयर केम आउट ऑफ द स्मोक लोकस्ट्स अपॉन द अर्थ and unto them was given power as the scorpion of the earth have power। ये जमीन से क्या निकली हैं? लोकस्ट निकली हैं। और कौन निकलता है यहां पे? यहां पे लिखा है एक दूत निकलता है, शैतानी महादूत निकलता है। अभी आपको बताता हूं उसके विषय में। लेकिन ये लोकस्ट्स क्या है? ये डीमन है, ये बदरुएं हैं, ये शैतानी आत्माएं हैं, बड़े बड़ी लोकस्ट के रूप के अंदर ये निकल के आ रही हैं। और ये लोकस्ट क्या करती हैं? ग्रीनरी खा जाती हैं। जो दूसरी लोकस्ट आती हैं वो आ रही हैं, अभी अफगान वो बवा आ रही है पृथ्वी के ऊपर। लेकिन ये लोकस्ट अलग हैं। ये इनको क्या हुक्म दिया गया? इनको हुक्म दिया गया कि कोई ग्रीन चीज नहीं खानी है और उनको तुम टच नहीं कर सकते जिनको इधर मोहर लगा दी है यहोवा की। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है लिखा है यहां पे? हालेलुया। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहां पे लिखा है एंड टू देम वाज गिवन दैट दे शुड नॉट किल बट दे शुड बी टॉर्मेंटेड 5 months। 5 महीने टॉर्मेंट करना है। बहुत से बाइबल स्कॉलर मानते हैं कि जेनेसिस चैप्टर 6 में जब फ्लड आया तो वो जो बड़े बड़े नफलीम थे, दानव थे, गिबरीम थे, इलोए थे, वो मरते नहीं थे, बहुत ह्यूज थे, बड़े बड़े। कुछ टेक्स्ट में तो ऐसा लिखा हनूक के, जशर के, कि वो 400-400 फुट से भी ज़्यादा लंबे थे। तो उनको मरने में 5 महीने लगे पानी के अंदर। 1 साल के करीब, 1 साल से थोड़ा दिन कम तक बोट पानी में रही। फिर नूह निकला बोट से बाहर। वाटर रिसीडेड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। इट टुक ऑलमोस्ट 1 year, जस्ट फ्यू डेज, लेस देन अ ईयर। बट इन द फर्स्ट 5 months गॉड डिस्ट्रॉयड देम। तो अब उनको रिटेलिएट करने का मौका मिल रहा है 5 साल के लिए, 5 month के लिए। 5 month लगे उनको डिस्ट्रॉय होने के लिए। एंड दे आर गेटिंग 5 months टू टेक देयर रिवेंज। तो 5 महीने तक लोगों को डंक मारेंगे। और लिखा है देयर टॉर्मेंट वॉज एज द टॉर्मेंट ऑफ अ स्कॉर्पियन दैट स्ट्राइकथ अ मैन एंड इन दोज डेज शैल मैन सीक डेथ एंड शैल नॉट फाइंड इट एंड शैल डिजायर टू डाई एंड डेथ शैल फ्ली फ्रॉम देम। डेथ एक स्पिरिट है, थैनाटॉस करके उसे ग्रीक में 6ठे चैप्टर में जेनेसिस के बताया गया है। हॉर्स पे बैठ के आ रहा था थैनाटॉस, उसके पीछे हेडीज है। ये दोनों बदरुएं हैं। ये बदरू के पीछे लोग भागेंगे कि हम मर जाएं, लेकिन वो मरेंगे नहीं। आपको मालूम क्यों? क्योंकि उन्होंने शैतान का निशान इधर लगवा लिया है। उनका डीएनए मैनिपुलेट हो चुका है। दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग परफेक्टली। सेटन ऑलरेडी स्क्रूड अप देयर डीएनए। वो पार्टली इमॉर्टल बन गए हैं। वो मर नहीं रहे मौत से, मौत नहीं आ रही उनको। वो जैसे पाप में, दुखों में, तकलीफों में इमॉर्टल हो गए हैं। दे विल इवेंचुअली पेरिश। हालेलुया। तो क्या लिखा है? एंड द शेप ऑफ द लोकेस्ट वॉज लाइक अनटू द हॉर्सेज प्रिपेयर्ड फॉर बैटल एंड ऑन देयर हेड वर एज इट वर क्राउन्स लाइक गोल्ड एंड देयर फेसेस वर एज द फेसेस ऑफ मैन। देख रहे हैं ये लोकस्ट कौन है? ये हाइब्रिड चीजें हैं। ये वही हाइब्रिड हैं जिन्हें उन वॉचर ने, शैतानों ने बनाया। औरतों के साथ संबंध बना के, पंछियों के साथ संबंध बना के, जानवरों के साथ संबंध बना के, मैमल्स के साथ संबंध बना के। ये सारे डर्टी क्रीचर्स हैं। दे वर नॉट द ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ गॉड। बहुत मासिव परवर्जन आया पृथ्वी के ऊपर। तो क्या लिखा है?
कि ये उनको नहीं छू पाएंगे जिनके ऊपर यहोवा की सील है। यहोवा 7 ईयर्स के ट्रिबुलेशन में भी अपने लोगों को बचाएगा जो उसकी ओर मुड़ेंगे। हालेलुया। और क्या लिखा है आगे जब हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं इसका 11 वचन पढ़ते हैं। एंड दे हैड ए किंग ओवर देम। लोकस्ट्स हैव नो किंग, नेचुरल लोकस्ट, बट दिस इज एन आर्मी कमिंग फ्रॉम द पिट ऑफ हेल। दिस इज एन आर्मी। हालेलुया। आपने मम्मी रिटर्न्स या मम्मी मूवी देखी है? इट्स द सेम थिंग दे हैव टेकन फ्रॉम हियर। क्योंकि एपिक ऑफ गिलगमिश जो है, इट कैरीज द सेम स्टोरीज। दुनिया के अंदर ये लेजेंड बन के कहानियां गई हैं जेनेसिस चैप्टर 6 की। हर एक देश का, हर एक सभ्यता का, सिविलाइजेशन का एक पैंथियन है। एंकी एनलिल सुमेरियों का, मिस्रियों के अलग अलग देवी देवता जिनके विषय में मैंने आपको बताया, बैबलोनियन के अलग अलग हैं, ग्रीक लोगों के अलग थे, ओलंपियन एंड टाइटन्स, रोमन्स के अलग थे, जुपिटर, हर्क्यूलिस, जूस। ये सब देवी देवताओं के पैंथियन कहाँ से आए हैं? उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में से। ये नफलीम है, उसके बाद दूसरी जनरेशन गिबरीम है, उसके बाद तीसरी जनरेशन इलोए है। ये हर संस्कृति, हर देश, हर सभ्यता के अंदर है, हमारे में भी है, हमारी संस्कृति में भी। ये है कड़ी जो पूरी बाइबल को खोलती है दुनिया की सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ। पढ़ें वचन को, अध्ययन करें, टाइम स्पेंड करें। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, पूरी दुनिया की बातें आपको सिखाएगा। और मैं फिर किसी से मैं आपको बताऊंगा कैसे युद्ध चल रहा है इनके साथ यहोवा का, पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में आप समझेंगे। फिर अब 11 वचन पढ़ें। इनका एक राजा है विच इज द एंजल ऑफ द बॉटमलेस पिट। बॉटमलेस पिट में किसी को कैद किया गया है। हमारे देश की संस्कृति में भी उसका एक नाम है, और लिखा है हुज नेम इन हिब्रू टंग इज एबेडोन। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा है जिसका नाम इब्रानी भाषा में अबदून है, बट इन ग्रीक टंग हैथ द नेम अपोलियन। हिब्रू में नाम है अबदौन और ग्रीक में क्या है? अपोलियन। अब ध्यान से इस वर्ड्स को देखें। अगर न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखा होता ओरिजिनली, क्योंकि राइटर तो सारे जूस हैं, यहूदी हैं, अगर उन्होंने मान लो ग्रीक में लिखा भी होता तो यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत थी कि ये जो लिखा है ना एबेडोन, बट इन ग्रीक टंग हैथ द नेम अपोलियन। इसकी क्या ज़रूरत थी लिखने की? क्योंकि ये तो ओरिजिनली तो पूरी स्क्रिप्ट ही ग्रीक में लिखी गई है। ये हमें बताता है कि ये हिब्रू में लिखा गया था। लेटर ऑन दे ट्रांसलेटेड एंड पुट अपोलियन। नेम इज एबेडोन। अपोलियन कौन है? ग्रीक पैंथियन का देवता है। हमारे देश के देवताओं में भी उसका एक नाम है। वो खुलेगा, वो भूतों का देवता है, भूतों का स्वामी है। वो बंद है, वो खुलेगा, उसके साथ ये सब बदरुएं निकलेंगी और पृथ्वी पे लोगों को मारेंगी आके। लिखा वन वो इज पास्ट एंड बिहोल्ड देयर कम 2 वोज मोर देयर आफ्टर। दो और वोज आ रही हैं पृथ्वी के ऊपर। अभी मैं समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ समाप्त करने से पहले। जेनेसिस चैप्टर 9 का मैं पढ़ना चाहता हूँ, 20 और 21 पढ़ लीजिए। जेनेसिस 9, 20, 21। मैंने और भी बहुत कुछ था, लेकिन बट मे बी सम टाइम लेटर वील बी मेडिटेटिंग ऑन द होल बुक ऑफ रेवलेशन। जेनेसिस चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 20, सुनिए ध्यान से। And the rest of men which were not killed by these plagues yet repented not of their works, of the works of their hands। ये बोझ आई, परमेश्वर की क्रोध आया, कटोरे उंडेले गए, तुरियां फूकी गई, मोहरें तोड़ी गई। यहाँ पे लिखा बच गए जो सर्वाइव कर गए बहुत से लोग, उन्होंने फिर भी तौबा नहीं की। दे डिड नॉट रिपेंट। लिखा है they repented not of the works of their hands। अपने हाथ की चीज़ों की पूजा करते थे। They should not worship devils। वो डीमंस की पूजा करते थे, नफलीमों की, जेनेसिस चैप्टर 6 के नफलीमों की। और क्या लिखा है? And idols of gold, silver and brass and stone and of wood which neither can see nor hear nor walk। वो ये काम करते थे, उन्होंने तौबा नहीं की।
और क्या लिखा आगे 21 वचन में, नीदर रिपेंटेड दे ऑफ देयर मर्डर्स, परवर्जन खून करना ये अबॉर्शन भी है। आपको मालूम कितने बच्चे मोलक को चढ़ाए जाते हैं अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, यूरोप में। और क्या लिखा है, नॉर ऑफ देयर सॉर्सरीज, जादू टूने, नॉर ऑफ देयर फर्निकेशन, जनाकारी हरामकारी, नॉर ऑफ देयर थेफ्ट, ये चीज़ें लिखी हैं, ये काम, इन कामों से उन्होंने तौबा नहीं की। आप समझते हैं क्यों उन्होंने तौबा नहीं की? समझते हैं इसका सीक्रेट क्या है, क्यों तौबा नहीं की? क्योंकि वो तौबा कर ही नहीं सकते। कारण क्या है? क्योंकि इस समय परमेश्वर का क्रोध है पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर का क्रोध कभी भी किसी को तौबा की ओर नहीं लेके जाता। When there is pure wrath of God unleashed, the wrath, the anger of God will not lead anyone to repentance. Nobody can repent when God's wrath is in display. परमेश्वर का एंगर पृथ्वी के ऊपर उतरा है, इस रौथ में लोग तौबा नहीं कर सकते। आपको मालूम क्या लिखा है? दूसरा पत्रस 3:15 में लिखा है, इट इज द गुडनेस ऑफ गॉड दैट लीड्स अनटू रिपेंटेंस। हालेलुया। रोमियो 2:4 में लिखा है, डू नॉट शो कंटेम्प्ट टू द रिचेस ऑफ गॉड्स गुडनेस, काइंडनेस, फॉरबेयरेंस, इंटेंडेड टू लीड यू अनटू रिपेंटेंस। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की गुडनेस लोगों को तौबा की ओर लेके जाएगी। यह रौथ है, इसमें कोई तौबा नहीं कर पाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आपसे ताकीद करता हूं, डू नॉट एंटर द फेज ऑफ गॉड्स रौथ, डू नॉट एंटिसिपेट दैट यू विल रिपेंट दैट टाइम, प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर हैंड। मिडवे में भी लोग चले गए स्वर्ग, जो मैंने दिखाया, उनके वस्त्र कभी साफ नहीं थे पर उन्होंने साफ किए और वो चले गए उड़ के। तैयारी कीजिए भाई और बहनों, खोखला जीवन मत जिए, फ्लेकी दिखावे वाला ईसाई जीवन मत जियो, डबल स्टैंडर्ड वाला जीवन। मास्क इधर से ना नोच के उतार दो, दिखावा, बनावटीपन, दिखावे की मसीहत बंद करो, सोशल मीडिया वाली। सच्चे तौर पे प्रभु की ओर पलटो। बहुत ही टेरेबल टाइम आ रहा है पृथ्वी के ऊपर, टेरेबल टेरेबल टाइम। तौबा करें, प्रभु की ओर पलटें, सच्चा रिश्ता प्रभु के संग रखें। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। द लॉर्ड ब्लेस यू। आई विल सी यू इन द इवनिंग। यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन।